Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will look at the question blank space, this one, 1829b blank space. So the question is, you are given a binary number, okay? You are given a binary array A of n elements. What exactly is a binary number? A binary array is an array consisting of zeros and ones. So for example, let's suppose this is a binary array. Let's suppose this is a binary array. Okay, so binary array means array is actually a list of numbers. Binary means that is the numbers are in the form of zeros and ones. Okay, so the question is, a blank space is a segment of consecutive elements consisting of only zeros. That means you can see here the zeros which are in continuous. This is considered as a blank space. So we have to find out your task is to find the length of the longest blank space. Let's suppose there is a one more zero here. So you can see the difference between this part and this part is that it contains the consecutive two zeros, and this one it has consecutive three zeros. So the longest space, or the longest, we can say longest zeros in consecutive way is 3 here. Okay, you can see here it says okay, let's understand it little bit deeper. तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? So first of all इसको हम लोग क्या करेंगे? Let's suppose or let's suppose take an example कि we are taking 7 elements. Let's suppose कहते हैं कि array है जिसमें 7 elements है. ठीक है? We are taking red as 1 and blue boxes as zeros. Okay, for better understanding. As you can see here, if I'm taking an array, so each array has a specific position. ठीक है, specific position कि array का what are the elements and what will be their position. ठीक. Next is, as you can see here, I'm pointing specific here. The first is we have to check whether the element in that position is either 1 or 0. Okay, we have to check the elements whether the element is 1 or 0. We don't need actually 1. The main thing is we need the 0 part. हम लोग को check करना होगा कि if that element is either 1 or 0. Let's suppose in this A0, the first element is 1. ठीक है. अच्छा, one more thing, we are taking these two variables, current and max. ये दो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं. इस वेरिएबल को हम लोग एक्चुअली पहले से इसको बता दिए हैं. तक द करंट का वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगा, और एक मैक्स करके वेरिएबल होगा जिसका 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ इसमें कंडीशन हम लोग ये करेंगे कि अगर एलिमेंट, जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, इफ दैट एलिमेंट इज 1, अगर एलिमेंट 1 है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो करंट का वैल्यू है इसको 0 करेंगे. अगर 0 है तो भी 0 करेंगे, अगर 0 नहीं है तो भी इसको हम लोग 0 करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, वी सी हियर द फर्स्ट वन इज 1, सो द करंट इज करेंटली इन 0. ठीक है. नेक्स्ट, let's look at the second one. Okay, this is 1, so we'll skip this one. Next we will look at the second element. We see that it is also 1. तो अभी भी हम लोग देखते हैं करंट का वैल्यू 0 है. जब नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, दैट इज द थर्ड वन, इसमें देखते हैं कि दिस वन इज 0. तो जैसे ही ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस एलिमेंट इज 0, हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, करंट के वैल्यू को हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे. दैट इज करंट का भी वैल्यू 1 हो गया. ओके, तो एक और चीज़ है कि वेट, इसमें एक और कंडीशन रखेंगे कि हमेशा हर बार जब भी 0 हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी एलिमेंट 0 रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर करंट, यानी ये जो वेरिएबल होगा, करंट अगर ग्रेटर देन अगर मैक्स हुआ,
करंट का वैल्यू अगर मैक्स से ग्रेटर हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट का जो वैल्यू है इसको हम लोग मैक्स में रखेंगे। दैट मीन्स अभी हम लोग जैसे देखें कि करंट 1 है और मैक्स 0 है, तो करंट का वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स वी विल स्टोर दिस मैक्स वैल्यू, स्टोर दिस ग्रेटर वैल्यू ऑफ करंट वेरिएबल इनसाइड दिस मैक्स वेरिएबल। ठीक है, इसलिए यू कैन सी द इन द नेक्स्ट step the max is equal to 1. Okay, now we will move to the next variable. next variable जैसे हम लोग वैल्यू चेक करते हैं क्या है एलिमेंट, दैट इज 1। तो जैसे हम लोग चेक करेंगे, चेक करते हैं कि दिस एलिमेंट इज 1, तो हम लोग क्या बोले थे, अगर कंडीशन में अगर वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 आता है दैट मीन्स ये करंट का जो वैल्यू है इसको दोबारा 0 कर देंगे। ओके, ठीक है, करंट का वैल्यू हम लोग 0 कर दिए। नेक्स्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं कि दोबारा इट इज 0। 0 जैसे हुआ तो करंट का वैल्यू हम लोग क्या किए, 0 से एक प्लस कर दिए। ठीक है, प्लस करने के बाद अगेन हम लोग चेक करेंगे मैक्स के साथ, क्या करंट इज ग्रेटर देन मैक्स, नहीं ये तो इक्वल टू है, तो अगर इक्वल टू है तो कोई इशू नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जैसे चेक करेंगे यू कैन सी अगेन नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जैसे 0 हो गया वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट बाय +1, तो ये 1 से +1 हुआ दैट इज 2। अब फिर ये कंडीशन हम लोग चेक करेंगे क्या करंट का वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है, यस। अगर कंडीशन यस है दैट मीन्स अब क्या होगा, मैक्स जो करंट का जो वैल्यू है इसको हम लोग मैक्स में स्टोर करेंगे। दैट मीन्स अभी मैक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, मैक्स का वैल्यू 2 हो गया। नेक्स्ट अगेन हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट जैसे ही 1 हो गया वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस करंट वेरिएबल टू अगेन टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो लास्ट एलिमेंट था, लास्ट एलिमेंट था तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो जो हम लोग का मैक्स वेरिएबल में जो मैक्सिमम वैल्यू आया वही हम लोग का आउटपुट होगा, जो कि हम लोग को वही निकालना है। ठीक है, ये तो हम लोग डायरेक्टली देखने से तो पता चल जा रहा है कि मैक्सिमम कितना 0 है, ये तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग बेसिकली 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने होंगे और एक एक वैल्यूज़ को हम लोग चेक करते हुए जाएंगे, एक एक वैल्यूज़ को चेक करते हुए जाएंगे एज पर करंट एंड मैक्स कि कितना बार 0 आ रहा है, कितना बार 1 आ रहा है। अगर 1 आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, करंट के वैल्यू को 0 करते जाएंगे, ये एक तरह का काउंटर जैसा हम लोग ले रहे हैं, काउंट करते हुए जा रहे हैं कि कितना 1 है कितना 0 है। ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो उसको हम लोग काउंटर का वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, अगेन 1 आ रहा है तो काउंटर का वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, जैसे ही 0 आ जा रहा है काउंट का वैल्यू हम लोग +1 कर दिए। ठीक है, +1 जैसे ही कर दे रहे हैं हम लोग को उसको एक और जगह पे रखना होगा कि वो मैक्स वैल्यू है कि नहीं उस जगह पे, इसलिए हम लोग उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये देंगे कि अगर करंट का वैल्यू अगर मैक्स से ज़्यादा है तभी वो चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि इस मैक्स का वैल्यू अगर 2 है और इसका वैल्यू 0 है इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे इससे, नहीं, अगर करंट का वैल्यू अगर मैक्स से ज़्यादा होता है तभी हम लोग उस मैक्स का वैल्यू में ये करंट का वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द कोड। कोड में हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो बेसिकली हम लोग क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होने चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर दैट इज टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो पहले हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं इसमें। नेम स्पेस स्टैंडर्ड, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं टी, दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अब टी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे, दैट इज यहाँ से रीड कर लेंगे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होंगे। नेक्स्ट इज हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो चलेंगे इसको हम लोग लूप में चलाएंगे, दैट इज हम लोग वाइल लूप ले लेते हैं इसमें। वाइल लूप यहाँ देख सकते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ, नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर।
दैट इज n, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एरे, यानी ये जो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे उसका साइज हम लोग को बताना है, ठीक है। तो एक और इसके अंदर वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज इंट, तो क्या है n, n नाम से ले लेते हैं। इसको भी हम लोग रीड करेंगे। रीड कर लिए। रीड करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एरे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ही सिंपल से ले लेते हैं और उसको लूप में चलाएंगे। और उसका कितना लूप चलेगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग इसमें स्टोर करेंगे उतना ही। तो इसके अंदर भी हम लोग एक और लूप ले लेते हैं, दैट इज वाइल n माइनस माइनस, ठीक है। लूप का जो साइज था n था। नेक्स्ट इज इसके अंदर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट्स लेंगे तो उसका भी एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। उसका वेरिएबल लेट्स सपोज उसका रखते हैं इंट a। उसको रीड करेंगे हम लोग, ठीक है। रीड कर लिए। नेक्स्ट हम क्या करना है कि इसके अंदर ये तो रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम लोग को चाहिए इसमें दो वेरिएबल, ठीक है। हम लोग चाहिए इसमें दो वेरिएबल, दैट इज इसमें चाहिए हम लोग को दो वेरिएबल। वन विल बी, इसमें जो दो वेरिएबल लिए थे, एक लिए थे करंट एंड एक लिए थे मैक्स, ओके। तो एक लिए थे हम लोग, इसको हम लोग बाहर ही रखते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं करंट। इसको ज़ीरो से हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी डिफाइन कर देते हैं। एंड करंट, एक करंट रखते हैं और एक मैक्स, ठीक है। दोनों को हम लोग ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो लूप चल रहा है, लूप के अंदर हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा कि ये जो ए वेरिएबल ले रहे हैं क्या ये इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ज़ीरो हुआ, ठीक है, यानी इस जगह पे अगर ये ज़ीरो हुआ, दैट मीन्स अगर ये ज़ीरो हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस करंट कर जो वेरिएबल लिए हैं इसका एक प्लस वन करेंगे, ठीक है। ये पहले करेंगे, दैट मीन्स करंट प्लस प्लस, ठीक है। ये तो कर लिया। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ चेक करेंगे, इफ करंट जो वेरिएबल है, करंट का जो वेरिएबल है इफ इज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है। अगर मैक्स ही ये ग्रेटर देन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स के अंदर इस करंट का वैल्यू रख देंगे, ओके। आई थिंक दिस इज ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आई थिंक इतना ही करना है। अच्छा एक और चीज़ है, अगर हम लोग एक और चीज़ है कि ये तो हम लोग वन लेने से तो काउंट कर रहा है, वन लेने से सॉरी ज़ीरो लेने से काउंट, ये करंट प्लस प्लस हो रहा है। लेकिन अगर ये वन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट का वैल्यू इसको वापस ज़ीरो में सेट कर देंगे। ये चीज़ हम लोग करना होगा। तो यहाँ इफ ख़त्म हुआ, एल्स में इसको रखेंगे। एल्स में ये क्या करेगा, अगर ये ज़ीरो नहीं, दैट मीन्स ये अगर वन हुआ तो क्या करेंगे, करंट का वैल्यू वापस ज़ीरो, चेक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। नाउ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मैक्स जो वैल्यू है लास्ट में वही हम लोग को डिस्प्ले कराना है, यहाँ तक ठीक लग रहा है। इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर ऑफ टेस्ट केस एक ही लेते हैं और इनपुट हम लोग ले लेते हैं टोटल 5, एरे का साइज ले लेते हैं। एलिमेंट्स रखते हैं 1 0 1 0 1 0, दैट इज ट्रू, ठीक है। ये तो करेक्ट आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस दिस वन। नंबर ऑफ साइज ये 7 ले लेते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केस 1, साइज एरे साइज 7, एलिमेंट्स क्या था 1 1 1 0 1 0 0 1, ठीक।
द आउटपुट इज 2। ठीक है, जो कि ये करेक्ट है क्योंकि कंजिक्यूटिवली यहाँ 2 ही है मैक्सिमम। ठीक, अब ये सारे टेस्ट केस एक बार चेक कर लेते हैं। तो द आउटपुट इज 21103। ओके, ये परफेक्टली है। ठीक है, इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही था। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।